السلام علیکم۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں شیراز احمد شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ 24 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اور تقریباً 396 کے قریب امیدواران جو ہے وہ ان انتخابی دنگل میں حصہ لے رہے ہیں۔ 9,58,480 ووٹر جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں تقریباً 5,03,772 مرد جبکہ 4,54,708 جو فیمیل ووٹرز ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گی۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتایا چلوں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کی سب سے بڑی جماعت ہے، جنہوں نے 24 میں سے 23 حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 امیدواران کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی یہاں سے پہلی مرتبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے اور 15 امیدواروں کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح جو اسلامی تحریک پاکستان ہے ان کے بھی 10 امیدواران جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور MWM کے حمایت یافتہ امیدواران بھی تقریباً 15 حلقوں سے انتخابی دنگل میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں کو بتایا چلوں کہ گلگت کا جو حلقہ ہے، دیامر کے جو حلقے اور ساتھ ساتھ سکردو کے حلقے کافی اہمیت کے حامل ہے اور یہاں سے جو بھی جس بھی پارٹی کو جو ہے ووٹ ملیں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے۔ اس وقت یہاں پر صورتحال یہ کہ جتنی بھی جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جلسے کیے، نواز شریف بھی گلگت آئے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی دیگر جو قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ ہم جائیں گے ووٹرز کے پاس، ان سے بات چیت کریں گے کہ یہاں پر جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو دعوے، وعدے اور جو خطاب کے دوران بلند بانگ وعدے ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد گلگت بلتستان کے مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہوتی، یا یہاں کے جو مسائل ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے، تو اس طرف حکومت جب بنتی ہے تو وہ توجہ کیوں نہیں دے رہے ہوتے، یا ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت رہی، تو ابھی تک یہاں کے مسائل پر توجہ کیوں نہیں دی گئی اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں ووٹر سے۔ دیکھیے جی، چلتے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ورکر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گلگت انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا مفلر آپ نے پہنا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے یہاں پر انتخابات کے حوالے سے؟ اور میں نے راستے میں بھی دیکھا آپ کے مسائل بہت زیادہ ہے، سڑکوں کا نظام اگر دیکھیں، ایجوکیشن کا نظام دیکھیں، ہیلتھ کا نظام دیکھیں، تو کیا توقعات ہے، کیا امید ہے پیپلز پارٹی سے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے توقعات تو ابھی ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر ہی ہے اور شروع سے ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیسی سے۔ تو ہماری بالخصوص میں اپنے جو جٹیال کے بارے میں آپ کو آگاہی کر رہا ہوں، تو ہماری جٹیال کے اندر پہلے یہ کوٹ مالا ہے، پوری یہ پرانا جو جٹیال یہاں سے پھیلا ہوا ہے اڈے تک جا کے ذوالفقار کالونی، نام جٹیال کا کوٹ مالا، یہ پرانا جو ایریا ہے یہی ہے۔ تو ہمارے مسائل زیادہ اس کے لیے کہ یہاں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، 20-22 ادارے ہیں، بغیر کمپنسیشن دیے ہوئے نہیں دیے ہیں انہوں نے، تو ہمیں گریڈ 1 سے جا کے گریڈ 9 تک ہمیں نوکریاں کوٹھے دیا جائے۔ اور 5 سال جو حکومت رہی نون لیگ کی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا PTI کے 5 سال رہا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ بتائیے، آپ نوجوان یہاں پر کن مسائل کا شکار ہے، کون سے مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تحسین رضا ہے، میں پاکستان پیپل پارٹی کا جیالہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان پیپل پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے یہ سیٹ اپ دیا تھا، یہ سیٹ اپ نیا متعارف کروایا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا گورنمنٹ گئی، اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی گلگت بلتستان میں۔ نون لیگ کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ نون لیگ کا صدر حافظ الرحمان نے اپنے رشتہ داروں، اپنے یار دوستوں کو نوازا۔ اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آئی۔
खालिद खुर्शीद ने भी इस तरह किया, अपने रिश्तेदारों और यार दोस्तों को नवाजा। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट से ये तवक्को रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को लेकर वो चलेगा, आवाम को लेकर चलेगा। इंशाअल्लाह वो गिलगित बल्तिस्तान के सारे मसाइल देखेगा और हल करेगा, हमें उम्मीद है। यहाँ पर और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, आप नौजवान है, आप ज़ाहिर बात है एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बुनियादी चीज़ें होती है किसी भी माशरे में रहने के लिए। यहाँ पर हेल्थ की सिचुएशन क्या है, एजुकेशन की जो रेशो है वो क्या है, और इन दोनों सेक्टर के हवाले से नौजवानों के मसला का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम मलिक ज़िया है और मैं स्टूडेंट हूँ जर्नलिज़म का कराक्रम यूनिवर्सिटी में। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात है तो खस्ता हाली का शिकार है, उस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। और हेल्थ को आपने मेंशन किया, सेम सिचुएशन है। और जहाँ तक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके जो मंशूर जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उन पे कोई सरदस्त या इस तरह की प्रैक्टिकल उस पर काम नहीं होता कि वो जो मंशूर लेके आते हैं फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे ये होता है कि इलेक्शन के आखिरी 2 महीनों में यहाँ पे आते हैं, अपने मंशूर को दोबारा जो है रिमाइंडर करवा रहे होते हैं कि हमारा मंशूर ये है। खैर नौजवान हैं, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। उस हवाले से अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया है, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा, मैं GB के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ के रीजन की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी यहाँ पे ये इस वक्त चल रहा है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ। पीपल्स पार्टी जो है एक अच्छी पार्टी रही है। गिलगित बल्तिस्तान को जो स्ट्रक्चर मिला है, जो आइनी सेटअप मिला है, वो 2009 में पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया था। आज जो चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं, जो गवर्नरशिप के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब सिस्टम पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ था। नोनली के गवर्नमेंट में भी काम हुए, ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक घर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद वो कालीनें बिछती हैं आराम आराम से, जाहिर सी बात है वो उस घर का हिस्सा होती हैं, तो फिर लगाना मजबूरी होती है, वो ज़रूरत नहीं होती। सहाफ़ती जो किया होता है वो ज़ाहिर बात है, मैं भी सहाफ़त का स्टूडेंट हूँ, आप भी सहाफ़त का स्टूडेंट है। जो इलेक्शन के वक्त जो लीडरान यहाँ पर आते हैं, अपना जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि अपना मंशूर जो है आवाम के सामने रखते हैं, फिर वो 7 साल गायब रहते हैं, तो कभी उनसे सवाल किया है कि आपके मसाइल क्यों है, आपके सड़कों का निज़ाम क्यों ख़राब है, आपकी एजुकेशन सिस्टम क्यों ख़राब है, हेल्थ सिस्टम क्यों ख़राब है, नेटवर्क यहाँ पर नहीं आता, तो कभी सवाल किया है उनसे बीइंग स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन? देखें, जहाँ तक सवालों की बात होती है, जहाँ तक मिनिस्टर्स की बात होती है, वो इलेक्शन में आते हैं, कैंपेन के लिए आते हैं। इलेक्शन के बाद वो 5 साल गायब होते हैं, वो तो पता ही नहीं चलता कि वो होते कहाँ पे। ठीक है, वो मीडिया में कहीं नज़र आते हैं कभी कभार। ठीक है, जब अपने मतलब की बात होती है वो करते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं एक उसके मीडियम के थ्रू, लेकिन अपने मतलब की बात करते हैं, हमारे मतलब की बात तो नहीं सुनते। हम जर्नलिस्ट हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। क्यों? उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो अपने आप को सेव कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंतखाबी गहमा गहमी यहाँ पर उरूज पर है और हम देखते हैं कि मसाइल पर भी यहाँ पर बात होती है, इंतखाबी कैंपेन भी यहाँ पर जारी है। 7 जून को इंतखाबी दंगल सजेगा और फिर हम देखते हैं कि जिन वादों का यहाँ पर जिक्र हुआ, जिन जलसों में हमने देखा कि जो वादे हुए, जो दावे किए गए, क्या वो महज दावे थे, क्या वो महज वादे थे, या उन पर प्रैक्टिकल काम भी जो यहाँ की पार्टियाँ हैं, जिनकी हुकूमत आएगी, वो करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे, उनके जज्बात, एहसासात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। देखिए जी, मैं उस वक्त गिलगित सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो कुछ नौजवान जो है वो यहाँ के जो मुकामी रक्स है उसका मुजाहरा कर रहे थे। हम यहाँ पर रुके तो काफ़ी ज़्यादा नौजवान यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वजूहात क्या है। मुझे बताइएगा, किस जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त काफ लीग के सेक्रेटरीट के पास मौजूद हैं और हमारी जो पार्टी है वो काफ लीग है। हम काफ लीग को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो काफ लीग का नामज़द उम्मीदवार है आसिम खान, जो कि यूथ की नुमाइंदगी कर रहा है, इससे पहले आप देखते जाए तो पिछले 70 सालों से कोई ऐसा यूथ का नुमाइंदा गिलगित सिटी में हमने नहीं देखा है जो इस तरह का नौजवान हो। और ये नौजवान, इसको पता है कि हमारे नौजवानों के कौन से मसाइल होते हैं। जितने भी मसाइल होते हैं, खा वो यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, अच्छा एजुकेशन के हवाले से हो, हर किस्म के मामलात नौजवान समझ सकता है। नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता, सड़कों का निज़ाम आपका दरहम बरहम है, एजुकेशन का निज़ाम भी हमारे सामने है, तो नौजवान हमेशा धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि हमें हमेशा से मतलब हमें धोखे में रखा गया है। कभी कोई पार्टी आकर कहती है कि हम ये करेंगे, कभी कोई आकर कहता है कि हम वो करेंगे। अभी तक किसी ने यूथ के लिए कुछ नहीं किया है। आप क्या समझते हैं कि यूथ के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए यूथ के लिए? आप सबको बखूबी इल्म है, मतलब इस वक्त पूरी पाकिस्तान में दुनिया
कहाँ पर चली हुई है। हमारे पास बेसिक नीड्स वो क्या कहते हैं अपना इंटरनेट मौजूद नहीं है, हमारे पास बिजली का निज़ाम दरहम व बरहम है, कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी के बकौल गिलगित बल्तिस्तान जो है 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन कल हम चिलास में मौजूद थे और वहाँ पर 22 घंटे से बिजली नहीं थी। भाई आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और आप क्या मसाइल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले हम काफ लीग की तरफ से हैं और हम काफ लीग को सपोर्ट करते हैं, और काफ लीग को हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो काफ लीग है इसके बड़े खिदमात हैं। ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग जो हमारे पास इधर आए हैं हुक्मरानी, इन्होंने पहले टाइम भी गुजारा हुआ है, इनसे कुछ अभी तक नहीं हो सका। ना यहाँ का बिजली का मसला हल कर सके, ना यहाँ का पानी का मसला हल कर सके, ना यहाँ एजुकेशन का कर सके, न ये कोई सेहत का कर सके। ये हर चीज़ में ये नाकाम हो गए। नाकाम हो के अभी आके इन्होंने इलेक्शन के दिनों नए ढोंग इन्होंने रचाना शुरू कर दिया कि हम नौकरियां दे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पिछले गिलगित बल्तिस्तान का सीएम पहले 2010 से लेकर 2026 तक यही हुकूमत करते रहे हैं। कितने लोगों को नौकरियां दी हैं और कितने लोगों के मसाइल इन्होंने हल किए हैं। अभी इलेक्शन के दिनों में आकर फिर से यही लोगों को झांसा देकर लोगों को फंसा रहे हैं। फंसा के हम बुनियादी जो है काबिल को सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो है इस वक्त नौजवान की आदत है जिसके पीछे हम खड़े हैं, और इंशाअल्लाह जीबी के अंदर जो है काफ लीग को हम दोबारा से फाल करेंगे। मुझे बताइएगा आपके मसाइल क्या है? आप यहाँ के शहरी है, किन मसाइल का सामना है आपको? मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसा कि ये रोड का हशर देखो, और बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये तकरीबन 15, 20, 30 सालों से तो ये लोग चल रहे हैं पीपी और नून लीग। अभी हम तो आप नहीं समझते कि आपकी इन्हीं खामोशी की वजह से मसाइल यहाँ पर ज़्यादा है? नहीं, हम खामोशी से अभी अपने हाथ में है फैसला, हम खुद करते हैं। अभी तो छोड़ दिया है, सबको आज़ाद छोड़ा है। किसी को हम ये नहीं कहते आप इसको वोट दे दो उसको वोट दे दो, सिस्टम खत्म। तो जिसको आप वोट देंगे आपको लगता है कि वो आपके मसाइल हल कर लेंगे? मसाइल हल तो मुश्किल नज़र आता है। वो भी तो चंद है, बस अपने मुफाद के टोले हैं। इस वजह से हम तो यहाँ पर खामोश भी है, और खामोशी आपको पता है कि वो खामोश क्यों है? नौजवानों से हम बात करेंगे। भाई आप आगे आ जाइएगा, आपसे बात करेंगे। बताइएगा आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? जी हम तो हाफिज़ रहमान साहब को करते हैं। जी, तो वजह क्या है उसकी? जुमाती बुनियाद पर आप देंगे या फिर ज़ाती हैसियत से? भाई साहब वो उसकी ज़ात ही ऐसी है, और जमात भी तो सबको पता है कि वो काम करती है, पूरे पाकिस्तान में करती है और गिलगित बल्तिस्तान में भी हो गए। तो क्या कुछ किया है अभी तक उन्होंने यहाँ पर, क्या करने जा रहे हैं? सर बहुत कुछ किया है। बेसिकली मैं खुद भी हेल्थ से रिलेटेड हूँ, और हेल्थ के एतबार से ही देखा जाए तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के तो उसने जाल बिछाए हैं। और ये कि कार्डियक हॉस्पिटल है यहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल है, और हमारी ये जो SSG हॉस्पिटल है। इस तरह बहुत सारे काम हो गए। यहाँ रोड्स देखें, गैस देखें, ये नकासी जो है, सीवरेज, ये सब। आप यहाँ के मुकामी है, मुझे बताइए कुछ जमातें कंप्लेन कर रही है कि उनको यहाँ पर कंपेन करने नहीं दिया जा रहा। क्या समझते हैं कि यहाँ पर सब कंपेन कर रहे हैं? कंपेन तो सभी कर रहे हैं और आज़ादाना तौर पे कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है। आप तो यहाँ पे चलते हैं, और ये तो आपको भी बखूबी इल्म है। कोई तो क्या उम्मीदें हैं जो जिनको आप वोट देंगे, क्या वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह सर, हम तो पूरी उम्मीद से उसी को वोट करते हैं, और भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पे है, और हमारी उम्मीदें पूरी उसी के साथ। सही। नौजवान कुछ पुरुमीद भी है, कुछ मायूस भी है, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि सबकी जो राय है वो शामिल करूँ। भाई मुझे बताइएगा, आप भी नौजवान है, क्या मसाइल है यहाँ के नौजवानों के, और किस जमात को आप सपोर्ट करेंगे और क्या उम्मीद है उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट करने की वजह भी मैं बता दूँगा। गिलगित बल्तिस्तान से FCR का कानून था, उसका ख़ात्मा, जो आज ये जो तमाम हलके 24 हलके जो भी कैंडिडेट इस हलके में लड़ रहा है, जो सेटअप दिया है वो भी पीपल्स पार्टी ने दिया है। आज इस हलके से भी जो लड़ रहा है, 1 से लड़ रहा है, 2 से जो उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी की दी हुई आइन है उसके मुताबिक यहाँ पर लड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं अमजद हुसैन एडवोकेट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने पिछले 5 साल में जो डिलीवर किया था, हालांकि वो एक आम मेंबर था, फिर भी CM जितना उसने डिलीवर किया था हमें। बाकी पिछले मेरे भाई ने वार की थी, उससे पहले एक यूथिया भाई था मेरा। पंजाब का यूथिया हो, सिंध का यूथिया हो, चाहे गिलगित का यूथिया हो, उन सब की साइकोलॉजी एक ही है। यहाँ पे लेवल प्लेइंग ग्राउंड है सबके लिए।
इक्वल कंपेन करे, सब NOC लेके बंधन ना आए। तो अगर बिलावल साहब NOC नहीं लाते तो उसे भी वापस यहाँ से करना था। बिल्कुल जी, ये नौजवान यहाँ पर कुछ मायूस भी है, कुछ पुरुमीद भी है, कुछ गिले शिकवे भी कर रहे हैं, कुछ का ये मानना भी है कि जिनको वो वोट करेंगे वो जब असम्बली में जाएंगे तो इनके मसाइल पर तवज्जो देंगे, इनसे जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से रात इस पहर भी तमाम बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। नौजवान अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, कैंपेन में मसरूफ़ है और साथ ही साथ जो खुशाइन बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि अपनी रिवायात से जुड़े हुए हैं और रिवायती रक्स हो, रिवायती उनके अथन हो या दीगर जो इनके रक्स है उनका यहाँ पर खूब मुजाहरा किया जा रहा है। भाईचारे का एक फ़िज़ा है और आगे भी हम जाएंगे, मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए जी, सियासी कायदीन तो यहाँ पर खूब जो है जलसे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जिन हुक्मरान यहाँ पर जिन हुकूमत की है उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर किया गया है और उनके मसाइल क्या है। ये मुझे बताइएगा, इंतखाबी कैंपेन तो यहाँ पर ज़ोर शोर से जारी है, तमाम जमातों के कायदीन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या है और अब तक वो मसाइल क्यों हल नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ का बुनियादी जो मसाइल थे उसमें से 80% मसाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हल किए हैं। 2015 से 2020 तक जितने प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के थ्रू, तो वो जो प्रोजेक्ट लगाए थे उनको उखाड़ने के लिए 20 से 26 तक जो हुकूमत बनी थी उन्होंने उखाड़े हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने स्पीच में लाइव प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ उसने बताया कि मुझे बहुत दुख हुआ गिलगित में आके ये चीज़ें देख के। पहले हमने मोटरवे की तरह बनाए थे गिलगित बल्तिस्तान के हर रोड को, इसी तरह सीवरेज सिस्टम का निज़ाम ख़राब है। तो बाकी जो आपको मैं गिनवाऊँ तो मेरा 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। आपने कहा कि 80% प्रोजेक्ट की आपने बात की, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मवासलात का निज़ाम होता है वो यहाँ पर नहीं है। अगर आप इंटरनेट की बात करें, आप नेटवर्किंग की बात करें, आप सड़कों की बात करें, तो इस पर फोकस क्यों नहीं है? ये इंटरनेट तो आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पाक आर्मी के अंडर में है, तो SCO के अंडर में वो SCO का जितना सर्विस थी वो दे रहे हैं। आप नौजवान है, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या मसाइल है यहाँ पर नौजवानों के और क्या तवक्कात है आपके इन सियासी लीडरशिप से? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना तवील सफ़र करके गिलगित बल्तिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं इसकी कवरेज करने के लिए आप आएँ। बुनियादी जो मसाइल हैं उसको मैं 4 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करूँगा। सबसे पहले तो एक हमारा सोशल एस्पेक्ट है, उसके बाद हमारा इकनॉमिक एस्पेक्ट, उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से 20 की जो हुकूमत रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इधर के जो CM थे हमारे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उन लोगों ने तकरीबन इकनॉमिक और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और उसके बाद इकनॉमिकल जो इश्यूज़ थे और जो एस्पेक्ट थे उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ फॉल करते हैं, उन सारों को अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कर लिया है। इंशाअल्लाह हम इस वक्त बहुत पुरुमीद हैं कि अभी जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं इसमें भारी अक्सरियत के साथ हमें हुकूमत मिलेगी। जवान तो काफ़ी पुरुमीद है, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप ज़ाहिर बात है अपन तो बहुत सारे इंतखाबात यहाँ पर देखे हैं, बुजुर्ग आप इस दफ़ा क्या सिचुएशन है यहाँ पर, पोजीशन क्या है इंतखाबात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम शेर नादिर खान है। मैं जुटियाल जो है कमेटी वाटर सप्लाई से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सदर हूँ उसका। मैं किसी पंजाब का ना नवाज शरीफ का बोलता हूँ, ना मैं आसिफ जरदारी का बोल सकता हूँ, सब हमारे लिए काबुल है। लेकिन इस हफीज़ साहब ने हमारे लिए पानी और बिजली और हमारे लिए हर वक्त दरवाज़ा खोलने में हम इसको सलाम मशकूर पेश करते हैं। बाकी मैं किसी पार्टी का ख़िलाफ़ नहीं हूँ। 2020 भी हमने इमरान खान साहब का किसी पार्टी को वोट कहा तो हमने उसको भी दे दिया। हमारे ऊपर किसी का गिला नहीं है, लेकिन हम ये कि हम मजबूर है, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, गली का पक्का सड़क चाहिए और आवाम के लिए जो है अस्पताल में पैरास्टामोल मिलने चाहिए, हम उसके पीछे हैं। आप मुझे बताइएगा कि इनकी बातों में सच्चाई कितनी है और अभी तक ये इश्यूज क्यों है? ये अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू वेरी मच 365 चैनल का। ये हमारे अंकल जो है ये 70s के, शायद उससे पहले की इनकी पैदाइश है, तो वो उस वक्त के हवाला दे के याद कर रहे हैं
ठीक है, भट्टू साहब जब तक जिंदा थे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे उन्होंने FCR का यहाँ पे खात्मा किया था, हम उसको उस वक्त की वजह से ऑनर करते। मगर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट 2015 से 2020 के अंदर हुई है, आज तक किसी गवर्नमेंट में, PPP की गवर्नमेंट उसके बाद 3 बार बैठी है। आप देखिए, आप किसी से भी पूछें, आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुशहाली का जो दौर था वो 2015 से 2020 तक का था। वो इसलिए कि उस वक्त हफीज़ुर रहमान साहब CM थे, वो लीड कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान को। गिलगित बल्तिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन हो, गिलगित बल्तिस्तान का हेल्थ हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, हर किस्म की जो फैसिलिटी जो पंजाब के अंदर अवेलेबल थी वो हफीज़ुर रहमान साहब ने गिलगित के अंदर पॉसिबल। आप मुझे बताइएगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या वजूहात है उसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक इसी मशीनी मोहल्ला से, मेरे हल्के से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स सामने हैं, कुछ टेक्नोक्रेट की शक्ल में, जो पीपल्स पार्टी की टेक्नोक्रेट की शक्ल में, कुछ PTI की शक्ल में। लेकिन आप गिलगित शहर की जो मजबूरी है, सूरत हाल इस वक्त आप देखें तो रोड्स पे जो है हर जगह पे खड्डे बने हुए हैं। इस वक्त गिलगित शहर की हालत पैरोदाई से बदतर हो चुकी है। बोलने वाला यहाँ पे सिर्फ कोई था तो हफीज़ुर रहमान साहब ने जो रोड्स बनाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड्स देने वाला सिर्फ हफीज़ुर रहमान थे, उसके अलावा किसी ने की। बात करेंगे PTI की, PTI की अगर हालत आप देख लें तो PTI के अंदर भी खालिद खुर्शीद साहब ने तमाम के तमाम ओहदे वगैरह जितने भी हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स में तकसीम किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी में आ जाएं, पीपल्स पार्टी में अंदर आप देख लें, चाहे टेक्नोक्रेट्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सिर्फ उन्होंने अपने फैमिली की हद तक उन्होंने उनको ऊपर उठाया हुआ है। सर, आप मुझे बताइएगा, आप किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा और पोजीशन क्या? हफीज़ुर रहमान को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या वजह है सर? सर हमारा लीडर है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान लेवल का लीडर है, तो पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रही है, तो हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ। सिर्फ सपोर्ट इस वजह से कि वो यहाँ के हैं या फिर मसाइल भी हल किए उन्होंने? बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि एजुकेशन। इधर गिलगित में अमन का मसला था, जब उसके दौर में बहुत सारे मामलात थे, उसके आने के बाद बहुत अच्छा अमन आ गया, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हुआ, रोड का सिस्टम अच्छा हुआ, तो हमारे साथ पानी का मामलात थे, पानी का मामला भी हल हो गया। बस पार्टी दावा कर रही है कि इस दफ़ा हुकूमत उनकी आएगी यहाँ पर। हाँ, वो दूसरे नंबर पे आएगी, इधर दूसरे नंबर पे, हमारे ये कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आते हैं। जी, नौजवान भी यहाँ पर हमने बात की, हमने यहाँ बुजुर्गों से भी बात की, हमने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर गहमा गहमी है वो उरूज पर है। कुछ शिकवे भी कर रहे हैं, कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो पुरुमीद भी है। लेकिन देखना होगा कि 7 जून को क्या होता है, जो इंतखाबी दंगल है उसका चैम्पियन कौन होगा और जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल है वो हल कौन कर सकते हैं। क्या इन इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, इन नौजवानों की जो किस्मत है वो बदल सकेगी या फिर ये महज जो यहाँ पर हो रहा है दावे ही है या वादे ही है? आगे बढ़ेंगे, मजीद लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखिए, सियासी गहमा गहमी तो उरूज पर है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कैंप है वहाँ से गुजर रहा था और यहाँ पर मुझे उस तरह की सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर तो ना लाइट्स है, ना यहाँ पर कुर्सियाँ है, या जो बाकी कैंप का हमने विज़िट किया, बाकी बाज़ार में हमने देखा जिस तरह बाकी जमातों की जानिब से कैंपेन किया जा रहा है, जिस तरह उनके वर्कर्स मौजूद है, यहाँ पर उस तरीके से वर्कर्स मौजूद नहीं है। कुछ मैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बात करेंगे। भाई मुझे बताइएगा, आप नौजवान भी है, इस हल्के के मसाइल क्या है, क्या कुछ जो है वो करने हैं आप लोगों को, और माजी में आपकी हुकूमत रही है तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, जहाँ तक आपने पूछा कि हल्के के मसाइल क्या हैं, हल्के में बहुत सारे मसाइल हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे लाइट आपके सामने है, लाइट और पानी, सबसे बड़ा मसला पानी का है। और पानी हमारे खुसूसन हमारे इस हल्के में पानी, बिजली और एजुकेशन सिस्टम बहुत स्लो जा रहा है। तो दीगर ऐसे मसाइल काफ़ी सारे हैं। जो आपने कहा कि पिछले दौर में आपकी हुकूमत रही, पिछले दौर में हमारी हुकूमत बिल्कुल रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट थे फतहुल्लाह खान साहब, तो वो मेरे ख़्याल में अच्छी तरह उनका किरदार नहीं रहा इस पार्टी के अंदर या इस हल्के के अंदर, उन्होंने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला काफ़ी सख्त है। बिलावल साहब भी यहाँ पर मौजूद है, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आए, तो क्या लगता है कि PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो क्या करेंगे? जी देखें, अतीक पीरज़ादा एक हम में से हैं और उम्मीद है और यकीन है फुल तमाद के साथ मैं ये बात आपको कहने जा रहा हूँ कि
अतीक पीरज़ादा GBLA 2 से इंशाअल्लाह अगर वो जीते तो इंशाअल्लाह ये जो मसाइल मैंने आपके सामने बयान किए, ये इंशाअल्लाह इस 2026 के इलेक्शन में 7 जून को आवाम अगर निकलेगी, इंशाअल्लाह इस हल्के की तकदीर बदल के अतीक पीरज़ादा आपके साथ। देखिए जी, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है। मेरे साथ यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप इस दफ़ा मैदान में उतरे हैं, यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा है, चाहे सड़कों का निज़ाम हो, दरहम बरहम है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्या मंशूर है आपका, क्या कहेंगे यहाँ के अवाम के लिए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जनाब। यहाँ पे वाकई मसाइलिस्तान है गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई इससे पहले। बेहतर तरीके से प्लानिंग जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ग्रांट इन एड पे चलते हैं, हमारे पास अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, अपनी कोई इनकम नहीं है, जिसकी वजह से बस वफाक से सालाना जो ग्रांट आएगा ये यहाँ पे हम लगाएंगे। तो सालाना आपका 18 बिलियन हमारा बजट है डेवलपमेंट का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 72,000 मुरब्बा मील का इलाका है जो तकरीबन 90% आपका KP आपका बनता है। तो उस पूरे इलाके का 20 अरब रुपए से आपको मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें देना। दूर दराज इलाके हैं जहाँ बिजली भी देनी है, पानी भी लोगों को पहुँचाना है, स्कूल भी देना है, डिस्पेंसरी भी देनी है। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिसका डायरेक्टली मतलब उससे डिपेंड करता है बजट से, फाइनेंस से। सर, आप मुझे बताइएगा, आप किसको वोट करेंगे और बुनियादी वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। ज़ाहिर है आपके सामने है आज का जो अवाम का जम गफ़ीर आपने ख़ुद देखा रैली के शक्ल में। ये सब डिवीज़न जगलोट की रैली थी टोटली। तो इसी रैली को देखते हुए हल्का 2 से फतहुल्लाह खान बारी मंडेट से लेके हल्का 2 से 7 जून को इलेक्शन हमारी जो सोच के मुताबिक जीत चुके हैं। पाकिस्तान पार्टी पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है यहाँ पर। इससे कबल जो यहाँ से मुंतखब हुए थे, क्या किया था उन्होंने और उनको छोड़ा आपने? देखिए, बहुत सारी पार्टियाँ पहले आ चुकी थी मैदान में, सबको हमने आजमाए हैं। आजमाए हुए को आजमाना जहालत कहते हैं। तो हमने सबको आजमाया, लेकिन वो टोटल फराड और मकारी के सिवा कुछ नहीं और झूठे दावे हो गए। तो इंशाल्लाह इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान साहब की क़यादत में गिलगित में पहली बार आ चुकी है, लेकिन एक समंदर को लेके चली है। और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे, जाहिर बात है इनकी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। सर, आप मुझे बताइएगा, आप गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह आपकी लीडर ने भी जो यहाँ से उम्मीदवार है उन्होंने भी कहा कि मसाइलिस्तान, लेकिन जब मैंने अगला क्वेश्चन किया तो वो चले गए। आप बताइएगा, इन मसाइल को हल किस तरह किया जा सकता है? आपकी पार्टी के पास हल क्या है इन मसाइल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, आप आए यहाँ पे हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए। तो आज से पहले 1994 से लेके अभी तक काफ़ी सारी पार्टियाँ यहाँ से इलेक्शन इसी हल्के से लड़ चुकी थी, जीत भी चुके थे, लेकिन कोई ग्राउंड में काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। 2020 के इलेक्शन में फतेहुल्लाह खान इक़्तिदार में आए और उसके टोटल 3 साल मतलब उसने इक़्तिदार में बैठ के ऐसे काम किए। हमारे सब डिवीज़न जगलोट में पीने का साफ़ पानी बिल्कुल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थी, एजुकेशन का निज़ाम दरहम बरहम था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हिसाब से देख के हम फतेहुल्लाह भाई के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, तो 7 जून को पता चल जाएगा। आगे भी बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के जो हमारे मुकामी सहाफ़ी है उनसे भी बात करें, कुछ ख़वातीन से हम बात करें कि ख़वातीन को यहाँ मसाइल क्या है, वो सहाफ़ी जो यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, जो यहाँ के मुकामी सहाफ़ी है वो क्या समझते हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर हमारे ही TV चैनल के 365 न्यूज़ के गिलगित से जो रिपोर्टर है, जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो इंतखाबात को करीब से देख रहे हैं और कम बेश तकरीबन 20 साल से वो यहाँ पर सहाफ़त के पुरखार वादियों में जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। वकार राजपूत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकार, मुझे बताइएगा, अब आप तकरीबन 20 साल से यहाँ पर सहाफ़त भी कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, आपको गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का भी पता है, लीडरान तो यहाँ पर आते हैं, दावे भी करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये यहाँ के जो मसाइल है वो अभी तक हल क्यों नहीं हुए, और बीइंग ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है? बहुत शुक्रिया शराजी साहब। चूँकि सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009 के बाद गिलगित बल्तिस्तान के ये चौथे इलेक्शन है,
जहाँ पर 2009 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसने वादे किए थे कि रोटी कपड़ा मकान और मसाइल हल करने के हवाले से, सरकारी नौकरी देने के हवाले से वादे किए थे, लेकिन वो मुंतखब होने के बाद वो वादे भूल गए। फिर एक 5 साल गुजार लिए उन्होंने। अवाम के जो मसाइल है वो इसी तरह रहे। फिर 2015 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पर हमारे वजूद में आई। मुस्लिम लीग नून ने भी वही अवाम से जो वादे किए थे, वईद किए थे, काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है मुस्लिम लीग नून से भी। इसी तरह PTI की गवर्नमेंट आ गई। PTI की गवर्नमेंट ने कहा कि हम तब्दीली का एक नारा लगा कर वो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाए। गंडापुर साहब ने आकर यहाँ पर लोगों से वफादारियाँ तब्दील करवाई, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तो PTI की ने भी ऐसा कोई डिलीवर नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि इंतज़ामी सूबा है, यहाँ ये ग्रांट एड पर पलता है। वफाक जो है वो एक मखसूस बजट यहाँ पर देता है। वो बजट जो है वो ये जो वज़रा हैं वो अपने प्रोटोकॉल के मज़े लेते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल नहीं हल होते हैं। चूँकि PSDP के मंसूबे इसी तरह गुज़िश्ता कई सालों से PSDP 160 अरब के थ्रो फारवर्ड ADP है हमारे, तो गुज़िश्ता कई सालों से PSDP के मंसूबे जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो PSDP में भी इसी तरह मंसूबे डाले जाते हैं। इन इलेक्शन के टाइम पे आके ये लोग PSDP में ऐसे मंसूबे डालते हैं। अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, आवाम को पानी के पीने का साफ पानी के मसाइल हैं। इसी तरह रोड की हालत आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। इनकी तरफ आज तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। इन इंतखाबात में ज़रा बताइएगा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी एक्टिव है, आसपा भुट्टो भी यहाँ पर एक्टिव है, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आए, उनके हमरा सीनियर वज़रा भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर भी कैंपेन कर रहे हैं। क्या लगता है इस दफ़ा पोजीशन किसकी वाज़ेह आपको दिखाई दे रही है और कौन इन इंतखाबी दंगल में जो है कामयाबी समझ सकता है? शराजी साहब, माजी में तो रवायत यही रही है कि जहाँ वफाक की गवर्नमेंट रहती है आवाम ने उसी को वोट दिया है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ अलग सी है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नए चेहरे आने चाहिए, लेकिन अब चूँकि वफाकी वज़रा भी यहाँ पर आए हुए हैं, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, वो गैर जानिबदार नहीं है, चूँकि उनके कायदीन को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ का कहना है। तो अब देखना ये है कि 7 जून को हमें देखा बैरिस्टर गौहर यहाँ पर मौजूद कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पर जुनैद अकबर खान साहब ने कैंपेन किया, शायद खटक साहब भी यहाँ पर आए थे, जिनके पास NOC है वो तो कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान गिलगित शहर के अंदर जो PTI के कारकुनान हैं, जो कि गिलगित 3 हलकों के PTI के मजबूत कैंडिडेट थे, उनका कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन इन हलकों में हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं या KPK से जो कायदीन आते हैं उनको आने की इजाज़त नहीं देते हैं, बकौल PTI के कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दी है। जब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं आई है, चूँकि PTI जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की वजह से इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड जमात नहीं है, इसलिए भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस दफ़ा मुझे बताइएगा कि आपके पास है, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, आपके राब्ते भी है, अब क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है, किसकी हुकूमत बन सकती है या किस किस हल्के से कौन कौन उम्मीदवार जीत सकता है? देखिए जी, टफ कंपटीशन है ये, क्योंकि गिलगित के 3 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वो PMLN के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, 1 to 1 का मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इन 3 हलकों में से कौन सी पार्टी जीतेगी। अब बल्तिस्तान के अंदर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी पार्टी अक्सरियत वाज़ा अक्सरियत से कोई कामयाब नहीं होगी, जो भी पार्टी 6 या 7 सीटें जो लेगी वो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, इंतखाबात का जो ये दंगल सजा हुआ है यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, और हमने आज वर्कर से बात की, हमने आज गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं उनसे हमने बात की, जानने की हमने कोशिश की कि यहाँ के जो मसाइल है वो हल क्यों नहीं हुए, जो इंतखाबात के दौरान वादे होते हैं, जो यहाँ पर सीनियर लीडरशिप मुख्तलिफ जमातों के यहाँ पर आकर जो दावे कर रहे होते हैं उन पर फिर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा होता। आपने यहाँ के जो वोटर्स है, जो लोग हैं, जो अवाम है, उनके जज्बात भी आपने जाने, उनके एहसास भी आपने जाने, उनके गिले शिकवे, तो सहूलियात का फुकदान हो या सड़कों की सूरत अब तो सूरत हाल हो, हेल्थ का निज़ाम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, तमाम यहाँ पर कोलैप्स कर गया है। कोई भी हम देख रहे किसी भी सेक्टर में यहाँ पर काम नहीं उस तरह हो रहा जिस तरह होना चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको दिखाएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के अवाम क्या चाहते हैं, और यहाँ के जो मसाइल है उनका बुनियादी हल कैसे मुमकिन हो सकता है। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।